अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम पर्सनल प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट लेक्चर सीरीज़ का पहला ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले लेक्चर्स में हम इनिशियल डिस्कशन करेंगे अबाउट पर्सनल प्लानिंग, दैट व्हाट इज़ पर्सनल प्लानिंग एंड व्हाट इज़ मेंट बाय रिक्रूटमेंट। सो ये दो चीज़ें मेन टॉपिक हैं इस पूरे लेक्चर सीरीज़ का, जिसका आज हम पहला लेक्चर ले रहे हैं। So before moving on, let's look at our today's discussion and the series of on the personal planning and recruitment. This is the second part जहाँ पे हमने पहले personal plans की बात की थी, job analysis की बात की थी, और उसके बाद the next step is recruitment of the candidate, recruiting the candidates. So, and after that, we will be discussing the selection process in okay, that includes the interviewing and all those. So we have some learning outcomes, learning objective for this lecture series. इसमें से सबसे पहले ये है, we will be trying to acquaint ourselves with the recruitment and selection process. What techniques are used in employment planning and forecasting. कितने हमें ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, उस ह्यूमन रिसोर्स को रिक्वायरमेंट को हम असेस कैसे करते हैं, उसके लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल. Then we will be discussing what is meant by effective recruitment. Recruitment का जो sole purpose है, which we'll later on discuss in detail, that is generating an eligible pool of candidate for the position or the positions which are vacant in our organization. फिर हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे, जहां से हमें सप्लाई मिल सकती है कैंडिडेट्स की, और ये भी देखेंगे कि इंटरनल के लिए व्हेन वी हैव टू गो फॉर द इंटरनल sources and when we shall go for the external sources. And then we will be uh, discussing that how to develop an attractive IDA-based job advertisement, because we want to attract the eligible candidates for the position vacant in our organization. So uske liye attract karne ke liye the very first tool we have is uh, advertisement, which is an IDA based and attention grabbing, interest arousing, and then uh, the action taking as well. So desire arousing as well. So that will be discussing how to draft such and how to design such a job advertisement. और आखिर में हम बात करेंगे, because we are living in the world where the workforce diversity is day by day increasing. So in such a situation जहाँ पे workforce बहुत diversify हो रही है, वहाँ पे क्या challenges हैं, क्या opportunities हैं for recruitment processes, and how we have to deal with those. So if we start the discussion on the recruitment and selection processes, so it starts with the personnel planning and forecasting. In next slides, we will be discussing that how we are going to do this personnel planning and forecasting. हमारे पास कौन सी पोजीशन वैकेंट रह गई है, अब वो वैकेंट पोजीशन जो रह गई है वो कौन सी है, कहाँ पे है, कितनी है. देन वी विल बी डिस्कसिंग कि जी अब जो है हमने अपने उसको फिल आउट करना है, कैसे करना है. वी विल बी डिस्कसिंग इट इन नेक्स्ट स्टेज, जहाँ पे हमने करना है कि हमने रिक्रूटमेंट के जरिए एलिजिबल पोल ऑफ कैंडिडेट जनरेट करना है. थर्ड स्टेप में उनसे अट्रैक्ट करना है उन एलिजिबल कैंडिडेट से जो है. देन वी हैव to get their information and go for initial screening interviews and other scrutinizing techniques and tools and techniques. फोर्थ स्टेप जो है वो ये है कि कौन से सिलेक्शन टूल्स हम यूज करेंगे जो हमारे पास एलिजिबल कैंडिडेट आ गए हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी दैट okay with that minimum eligible, they are eligible for those जो हमने मिनिमम स्टैंडर्ड्स किए हैं. अब वो मिनिमम्स के बाद जो कैंडिडेट्स हमारे पास रह जाते हैं, चूजिंग बेस्ट अमंग दोज अवेलेबल
सो उसमें से जो बेस्ट चूज करना है वो किन सिलेक्शन टूल्स के जरिए करेंगे. टेस्टिंग, इंटरव्यूज, दैट इज अनदर phase of the recruitment and selection processes. फिर उसके बाद at the end we will be discussing the final offer to make. अब वो जो offer है, how that offer shall be made and what it shall contain and how the person is in uh, stage of negotiating that offer, or we are in that position as an organization to negotiate about that final offer. सो ये एक ग्राफिकल व्यू है उस सारे प्रोसेस का जो कि अभी हमने डिस्कस किया है. इसको अगर हम जरा मजीद कीनली देख ले तो हमारे पास फर्स्ट पेज जो है वो प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग का आता है, which we are going to discuss as well. फिर उसके बाद रिक्रूटमेंट है, और रिक्रूटमेंट का सोल पर्पस ये है टू बिल्ड अ पोल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, नॉट ऑफ कैंडिडेट्स बट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स. एलिजिबल कैंडिडेट्स से देन the rest of the three processes are collectively called selection processes, जहां से हमने उस एप्लीकेंट से डेटा लेना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए में. वो एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह डिजाइन होने चाहिए which is corresponding with the job description and job specification of those positions which are vacant with us. Then we will be using the selection tools like this in screener to screen out most applicants. Then we will be going for interviews and other selection tools जहाँ पे हमने जो applicants हैं उसको narrow down करना, number of applicants को जो कि best से best जो है वो आगे जाए, and then we have to make an offer to those who are best and available for our vacant positions. So, but जैसे हमने कहा the very first thing is forecasting, planning and forecasting. उससे पहले organization की strategic focus जो है वो देखना है. Where the organization is strategically focused. Is it on focus and diversification? Is it on integrating the integration vertically, downward and upward? Downward का मतलब ये है वो अपने जो distribution channels हैं उसकी तरफ इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, या जो सप्लाईज उनकी तरफ से हो रहे हैं उसको भी ऑन करना चाहते हैं, या जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज ग्रोथ इन जियोग्राफिकल ग्रोथ वो चाहती है, एक्सपेंशन चाहती है अपने ऑपरेशंस की, अपने ऑफिसेस की, या जो बेसिस ऑफ कंपटीशन है उसके बेस पे. सो व्हेन वंस द ऑर्गेनाइजेशन strategic focus is now, then it is then translated to different planes like employee functional planes, marketing and sales planes, production planes, financial planes, and HR planes. And we are more concerned with the HR planes. फिर HR planes में से जब हमने देख लिया कि जी डाइवर्सिफिकेशन है या इंटीग्रेशन की तरफ है, उसके मुकाबले में जो है then the HR department is going to have all the HR related planes कि स्टार्ट होते हैं पर्सनल प्लेन से, जो कि बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन, लेबर रिलेशनशिप एंड सो ऑन सो फोर्थ अदर एचआर प्लेन्स को भी इंक्लूड करते हैं. पर्सनल प्लान में से हमारे पास फिर तीन आता है. दैट इज द वन, द वेरी फर्स्ट वन इज टू फोरकास्ट कि कितने लोग चाहिए, उस स्ट्रेटेजिक फोकस को मद्देनजर रखते हुए. देन उसके बाद रिक्रूटमेंट के जरिए हम एलिजिबल पोल ऑफ कैंडिडेट्स जनरेट करते हैं. उसके बाद उस एलिजिबल पोल ऑफ कैंडिडेट में बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट्स को अपने वैकेंट पोजीशन के लिए लेकर आना. दैट इज द एम ऑफ दिस एचआर प्लान. ये फोरकास्टिंग कैसे होगी? सो उसके लिए हमें डिमांड भी फोरकास्ट करनी है और सप्लाई भी फोरकास्ट करनी है. डिमांड के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि जी कंसिडरेशन क्या है, जी टेक्नोलॉजी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है, मैनेजमेंट फिलॉसफी है, जिसको हमने प्रीवियसली स्लाइड में कहा कि जी स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? डाइवर्सिफिकेशन है, इंटीग्रेशन है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ है. अब एक्सपेंशन दो तीन तरह की हो सकती है. प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन है, geographical expansion and so on and so forth. So if it is the case that we need more human resource, then we will go कि हमें अब पता लगाना है कि कैसे करने. So उसके लिए हम trend analysis, ratio analysis,
और स्कैटर प्लॉटिंग करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल कि जी हमने डिमांड फॉरकास्ट की कि जी इतने ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए। इसके साथ अब देन वी आर गोइंग टू फॉरकास्ट द सप्लाई एज वेल। हमें कहाँ से मिलेगी ये जो सप्लाईज हैं, जो डिमांड तो हमने कर दी कि सच नंबर ऑफ पीपल फॉर दैट नंबर ऑफ पोजीशन आर रिक्वायर्ड। सो उसके लिए फिर हम HR इन्वेंटरीज देखेंगे। HR इन्वेंटरीज आर विदिन HR डिपार्टमेंट होते हैं, अपने इंटरनल इन्वेंटरी भी होती है। एंड इन टुडेज वर्ल्ड वी आर हैविंग ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सटर्नल सेक्शन एज वेल, जहाँ पे हमने एक अपने वेबसाइट पे एक पेज रखा होता है, एक पूरा सब डेटाबेस रखा होता है, जहाँ पे कोई आता है वो अपनी CV बनाता है, वो अपना प्रोफाइल बनाता है, और पॉसिबल वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस वगैरह वहाँ पे वो डाल देता है। सो व्हेनेवर वी नीड सो वी कैन have an access to him. इस तरह मार्केट एनालिसिस है, स्किल इन्वेंटरीज है, रिप्लेसमेंट चार्ट्स हैं, एंड सक्सेशन प्लानिंग है। रिप्लेसमेंट चार्ट और सक्सेशन प्लानिंग जो है वो हम जरा टॉप मैनेजमेंट लेवल पोजीशंस पे के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमें चाहिए कि जी जो टॉप मैनेजमेंट है, जब उनको हमने सक्सेशन प्लानिंग में हमने अपनी जो टॉप मैनेजमेंट की रिप्लेसमेंट देखनी होती है कि जी इनको हमने तैयार करना है अपने लीडरशिप पोजीशंस के लिए, और रिप्लेसमेंट चार्ट हमें उसके अकॉर्डिंगली हमने डिजाइन किए होते हैं दैट मिस्टर ए इज ऑन द टॉप ऑफ दैट, सो हु कैन रिप्लेस इट। सो इफ B C D, बी की क्या है, वी आर इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी डिस्कसिंग एज वेल। एक्सटर्नल कंसिडरेशन क्या है, वर्कफोर्स में जो चेंजेस आ रही हैं क्या है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज द लिटरेसी। अब इट इज नॉट ओनली द कॉमन लिटरेसी, इट इज the job related literacy, it is the ICT literacy, mobility के issues भी है, to that will the human resource we are looking for will be more, we need to move from their home where we are going to place them। गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, मिनिमम वेजेस के हवाले से, वेजेस के हवाले से, अदर सर्विसेज के हवाले से, और अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्योंकि इफ देयर आर अ लॉट, if the percentage of unemployment is high, then we may have very high for supply, but if the unemployment is less, then we will be having very less supply। so यहाँ पे जब अगर number of supplied candidates बहुत है, तो then we will be having in a better position to get best among those। लेकिन अगर कम है तो हमें उसको देखना होगा। ये तो हमने देख लिया कि ये फोरकास्टिंग डिमांड एंड फोरकास्टिंग सप्लाई, ओके, both are forecasted, and when we look into those things कि जी बैलेंस में शॉर्टेज है, सप्लाई जो है वो जो डिमांड एंड सप्लाई को हमने बैलेंस करना है। अब जो डिमांड है वो ज़्यादा है और जो हमने ऑलरेडी हमारी जो पोजीशन हमें शॉर्टेज है, मीन्स देयर आर सम पोजीशन वैकेंट, सो वी विल गो फॉर द रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट में देन वी हैव टू डिसाइड कि फुल टाइम रिक्रूटमेंट, फुल टाइम एम्प्लॉइज हमने लेने हैं या पार्ट टाइम एम्प्लॉइज लेने हैं। इफ the demand is less than the supply, जो already है हमारी positions वो over occupied है और staffing है, तो फिर हम surplus है, surplus के लिए फिर we have another techniques, layoffs है, termination है, demotions है, retirements है, जिसे आजकल हम right sizing का नाम देते हैं। इसके अकॉर्डिंग अपने human resource को हमने right size से लेकर आना होता है। This is some of the techniques we have been discussing in the last slide. That one is the ratio analysis। कि जी पहले हमने देख लिया जी कि हमने एक हॉस्पिटल नया, जब हॉस्पिटल में 200 बेड्स थे तो हमें 240 नर्सेस चाहिए थे, जब 300 हो गए 260। तो यहाँ पे हमें एक ऑन एवरेज हमें लगता है कि जितने हम 100 बेड्स बढ़ाते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो कितने बढ़ते रहते हैं। So उससे हमें एक एवरेज मिल जाता है, एंड इफ वी आर गोइंग आफ्टर 900 to the 1000 तो फिर हम देखेंगे कि हमें कितने लोग रिक्वायर्ड है। इसी तरह स्कैटर प्लेन से भी, स्कैटर प्लॉट से भी हमें ये अंदाजा होता है, हमें ऑन एवरेज पता लगता है कि जी कितने नंबर ऑफ जो वैकेंट पोजीशन है, तो स्ट्रेटेजिक फोकस की वजह से हमें चाहिए डिफरेंट इश्यूज की बेस पे। और इसके अलावा जो है वो हम ट्रेंड एनालिसिस भी देखते हैं। ट्रेंड एनालिसिस ये है कि जी प्रीवियसली कितने लोग हमने लिए थे जब हमने जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की थी या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी।
इनके ड्रॉबैक्स हैं इन ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग टेक्निक्स के. What are those? They focus on projections in historical relations. ये प्रीवियस डेटा के बारे में बात करते हैं. जब भी they are talking about the previous data, so the previous data did not take the current context in consideration. अब करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जॉब नेचर चेंज हो रही है, आईसीटी इज मोर इन्वॉल्व नाउ, सो it may not be giving us the true predictions or the true forecast. And they do not consider the impact of strategic initiative on future staffing plan, because if the organization is there and they want to have having more ICT literate employees. So वो जो प्रीवियस थे जहाँ पे laborious वर्क था, जहाँ पे मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा था, अब अकाउंट्स में हमें we are no more to have to maintain the ledgers and all those, we have an ERP system and all the things are ERP. So वो जो चीजें थी वो शायद यहाँ पे हमें काम ना आए, because now the strategic initiative has been taken is different one, which is not been taken into consideration while doing these forecasting on the ratio, on the scattered plot and the trend analysis. The support compensation plan that reward managers for managing ever larger staff. Because today's world, the the money, the financial resources is of key importance. So cost reduction के लिए previous ये था कि जितने ज़्यादा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होगा तो मैनेजर को उतने ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, उसके मैनेजमेंट स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड चेन ऑफ कमांड है, या उनके जरिए वो मैनेज करने के जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वो मैनेजरियल पोजीशंस पे ज़्यादा मिलते हैं. But it is not needed now, strategic human resource. Either we want to have the smart employees which are more ICT literate. That back in the idea that staff increase are inevitable. चूंकि ट्रेंड एनालिसिस में बता रहे थे कि जी जब हमने ऑपरेशंस इतने चेंज कर दी तो इतने हमने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स को हायर किया. सो ये हमें बताते हैं कि जी जो स्टाफ है इट शैल बी इंक्रीज, but it is not always the case, because through ICT literacy and the computerization and the digitalization of the business, we are now in a position कि जी कम लोगों से ज़्यादा जो है वो position ले, जब we call the death of specialization. Now we need generalists. So ये सारी चीजें जो है हमें जरूरी नहीं है कि हम स्टाफ इंक्रीज करें, rather we need to have to more focus on their skill inventory and their competency level. Validate and institutionalize the present planning processes, unusual ways of doing things. ये traditional ways हैं, so they are more to accord with the traditions. So they don't take the new things, the new happenings, the new changes have been taken place in the corporate world, in the business world. So वो सारी चीजें जो हैं वो ट्रेडिशनल फोरकास्टिंग टेक्निक्स अपने साथ नहीं लेते. So अगर नहीं लेते तो then what to do? So now we have to use the softwares. So जहाँ पे हमें projections, sale projections हमें मिल जाती है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, पर्सनल रिक्वायरमेंट टू मेंटेन डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट. सो हमें पता लग जाता है कि जी सेल प्रोजेक्शंस ये हैं, हमारे जो है प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ये होगा, हमारी जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं वो इतनी होंगी, सर्विसेज के जो कास्ट है उस पर ये आएगा. सो हम एक कंप्रहेंसिव वे में सिंपल प्लॉट्स पे नहीं चलते जहाँ पे 2-3 variables को हम कर रहे हैं. हमारे these software take into consideration more variables for the future staffing needs के लिए. Forecasting staffing level for direct labor, indirect staff and exempt staff, temp staff और part-time staff, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी हैं जिसे हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं, जिसे हम पार्ट टाइम एम्प्लॉय के जरिए भी कर सकते हैं. सो दीज सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर ERPs are the safe software, so they are more complex and more sophisticated. They take into consideration more variables, and that's why they can predict very good forecast. Creating metrics for direct labor hours in pre-sales projection scenario, minimum, maximum, and probable. So हमें ये तीनों सिनेरियो दे देता है कि जी इतने लेबर आवर्स हमें चाहिए, इतने हमें मैनेजरियल आवर्स, वर्किंग आवर्स है ये चाहिए, और उसके फिर 3 पॉसिबल सिनेरियोज दे देते हैं कि ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है,
ये probable है. So then we, and according to the context, फिर then taking the other decisions, other to way of decision making, उसके जरिए हम फिर forecast को मजीद refine करते हैं. So this was all about the forecasting. कि forecasting, पर्सनल फोरकास्टिंग क्या होती है. फोरकास्ट में से फिर सप्लाई की हम बात करेंगे, तो दैट वाज अ डिमांड साइड. अब फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ द इनसाइड कैंडिडेट्स. तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, उसमें हम देखते हैं कि जी हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स था, जब वो आते वक्त उनकी क्वालिफिकेशन थी, और इस वक्त क्या है. So previously ये था कि जी manual system and replacement chart, which is no more valid. Rather we have computerized skills inventories, and we have human resource information systems, जहाँ पे हर बंदा who got a certificate, who got a diploma, who got another degree, is also, that information is also punched there, which is available there, and through a query we can know that how the जो वैकेंट पोजीशंस हैं, उनके लिए हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं जो कि अपने इस करंट पोजीशन से ज़्यादा जो इससे आगे की पोजीशन है उसके लिए एलिजिबल है. सो क्वालिफिकेशन इन्वेंटरी से हमें वो पता लग सकता है कि हाउ मेनी पर्सन वी हैव इन our own organization जहाँ से हमें supplies मिल सकती है. These are the replacement chart. For example, division vice president है, vice president sales Mr. Abel, division vice president है, और उसके साथ जो है उसकी 3 possible replacement है. वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स है, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस है. सो हमें चाहिए, हम थ्रू लेजेंड्स हम देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री, नीड्स इम्प्रूवमेंट, परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस. दूसरे हम उसकी रेडिबिलिटी देखते हैं कि रेडी नाउ, नीड्स फर्दर ट्रेनिंग, एंड क्वेश्चनेबल. सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इफ वी लुक इनटू दिस रिप्लेसमेंट चार्ट, तो वो हमें दिखा देता है कि जी जो आउटस्टैंडिंग है वो है John Saab. And he is ready now as well. So the best possible option for the division vice president is John's, because vice president sale is satisfactory, having satisfactory performance as well as need further training. While in the vice president finance is having need to improve his performance, and also his promotion potential is questionable, so we cannot promote that person. Then we are going to, as we have said कि जी हमने qualification inventories देख ली है. Qualification inventories तो हम देख रहे हैं, but there are concerns with that, which we call privacy concerns. ठीक है जी. Privacy concerns हैं ensuring the security of HR information. जो हमारे पास already human resource है, उस human resource के information तो शायद हमारे पास available ही है, but can we use that? So that's a question. So in US there are certain legislation. In Pakistan and in the subcontinent we have some provisions, एक्ट्स हैं कुछ जो कि डायरेक्टली तो प्राइवेसी को डील नहीं करते, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर डीलिंग दैट as well. That is, the dignity of the man is to be maintained, and no one can deny that. So if there is something very private to the person, so that shall not be used by anyone else. So प्राइवेसी के जो मैटर है एचआर के इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने की, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में दिस इज वन ऑफ द इशू विद दैट इट कैन बी हैक्ड. So if it is hacked, so then it can be problematic for us, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है दैट इज प्राइवेट of that person, उसकी salary जो है, उनकी income वगैरह है, that can be misused by some others. So while going through our HR things, HR information, so we have to keep this matter of privacy into consideration, because in Pakistan we have some constitutional provisions
As well as there are certain provisions in the Civil Servant Act, which is applied to the civil servants only. Industrial Relationship Act जो है, that also maintain 2012 वाला, वो भी कुछ चीज़ों को मेंटेन करता है जहाँ पे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, बट it did not specifically talked about the privacy of the human resource information, but there are implied provision in the laws of the land of that is Pakistan and India as well. Outside से हमें कहाँ से लोग आ सकते हैं, दैट वाज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट कि जी हमें पहले जो है वो लोग आ सकते हैं फॉर इनसाइड, जहाँ से हमने क्वालिफिकेशन इन्वेंट्री से उनको देख लिया. इंटरनल रेफरल कैन बी अनदर एज वेल. Factors in supply of outside general economic condition, then we have to look into कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, क्या जो हम पे स्ट्रक्चर ऑफर कर रहे हैं विल दैट बी एक्सेप्टेबल टू आवर कैंडिडेट और नॉट. ठीक है जी. अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है तो शायद नेगोशिएबल हो, हम लिस्ट पे भी ले सके, बट इफ इट इज हाई, इफ इट इज लो, देन वी विल बी सेइंग कि जी अब यहाँ पे जो है हमें कट ऑफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है. जिस जियोग्राफिकल पोजीशन के लिए हम लोग ले रहे हैं वहां पे जाने की कोई इशू नहीं है, मोबिलिटी चार्जेस या रिलोकेशन चार्जेस तो नहीं है. सो वहाँ पे हमने बिजनेस पब्लिकेशन ये देखने हैं, अपने जो ऑनलाइन इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है यूएस में तो बहुत है, हमारे यहाँ ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक पीबीएस है, बिजनेस रिकॉर्डर जैसे कुछ न्यूज़पेपर हैं जो कि हमें बता रहे हैं व्हाट आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर. वी कैन से कि जो फेडरल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अलावा जो इकोनॉमिक डिवीजन है, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, फ्रॉम दैट we can also know about the general economic condition and the expected unemployment rate as well. But in this part of the world, the documentation is not as that much of the developed world, that is US, जहाँ पे हर चीज documented है and government knows and in which categories how many employees are there, what are their qualification, all those. So पाकिस्तान में और पाकिस्तान से रिलेटेड जो सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, यहाँ पे इश्यूज ये हैं कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज नहीं है, डॉक्यूमेंटेड के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके एम्प्लॉयमेंट जो है, उनके जो डेटा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ कैडर्स हैं, क्वालिफिकेशन वाइज है, दैट इज नॉट that much which we can rely on. So then we have to do our own research, market research, कि जी हमने आउटसाइड जो अप्लाई सप्लाईज हैं वो कहाँ से देखनी है. So this was all about the forecasting the demand and the supply thing. After this, in the next lecture, we will be discussing for effective recruitment and the recruitment process as well. So that was all for this first lecture on the recruitment and selection process, in which we have discussed that what is the recruitment and selection process, which has a 5 steps. इसमें से सबसे पहला ये है फोरकास्ट हम करते हैं, प्लान करते हैं, देन रिक्रूटमेंट के जरिए एलिजिबल पोल कैंडिडेट करते हैं, इसकी स्क्रूटनी करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इसके जरिए स्क्रीनिंग करते हैं, और एंड में हम जो फाइनल ऑफर लेटर है दैट हैज टू बी गिवन. फोरकास्टिंग में हमने फिर पढ़ा कि जी इंटरनल सोर्सेज के जरिए कैसे किए जा सकते हैं, जो डिमांड है वो कैसे फोरकास्ट की जाती है, और सप्लाई कैसे फोरकास्ट की जाती है. सो उसके हमने कुछ टेक्निक्स पढ़े. सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस first lecture. In the next lecture, we will be discussing the effective recruitment, that why effective recruitment is important, and what is the recruitment process in detail.